Welcome to the channel Easy Trick for the Computer Science students and as well as those students who learn something new in the computer science field. And that particular topic is related with the network security of the any type of internet applications and the search engine, that why you use the search engine and how to use the search engine and what is the actual working position of the search engine. And we will also discuss about the operators of the search engine so that all the things will helpful for your better and filtered research into the search engine. So what is the search engine? A search engine is actually a software program that provides the information according to the user query. Whatever question you will put into the search engine and into the website of the search engine, definitely that particular path will provide the information according to your question. So the various websites or the web pages available on the web browsers, that web browsers are the Internet Explorer, Mozilla Firefox, Opera, Google Chrome, whatever the part is, but you will enter into the search engine. For example, when you will search, a student wants to learn the C++ language and you search with the phrase C++ tutorial in the inverted quotes, then the search engine definitely give you a list of the tutorials related with the C++, and it will say that the search engine is the internet based software program whose main task is to collect the large amount of data or information about what is on the internet platform and which category about the asking by the users. So which category you was asking about the, like when you will enter into the C++ tutorial, the pages reflect all the pages will the C++ tutorial on the search engine. So the search engine categorized information are the same either on the whichever is the search engine, like the Google having a search engine, Yahoo having a search engine, Bing is the search engine. So these particular three search engines are the most popular. 99.9% people definitely use the Google search engine with the various languages, but the as parallelly approach of the search engine capabilities, the Yahoo and the Bings are the most popular search engine category under the surveillance of the network security. So now we will discuss about the how do search engine works. Search engine works actually in the three parts, that is crawling, indexing and the ranking. Crawling part said that when the number of computers or programs that are responsible for finding an information that are publicly available on the internet path, so these programs can be scanned by the web browsers and a list of available websites. Means कि क्रॉलिंग में होता क्या है कि जब भी आप किसी भी वेबसाइट को विजिट करते हो तो उसका कोड जो है वो HTML बेस्ड होता है, हाइपरटेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज के ऊपर बेस्ड होता है। अगर उस स्ट्रक्चर में कोई भी कंटेंट आपका सेव हुआ है, फर्स्ट कंसर्न वो उस पे करेगा कि आपने क्यों इसके ऊपर डेटा दिया है। अगर कोई पार्ट उसके ऊपर एंटर हुआ है तो वो आपको वेबसाइट की सर्च उससे करवाएगा, नहीं हुआ तो क्रॉलिंग करके मेन पार्ट पे भी आ जाएगा। इंडेक्सिंग होती है कि जब आप इंटरनेट के ऊपर कोई भी डेटा डालते हो, सेम एज विद द डिक्शनरी, कि जब डिक्शनरी में कोई आपने वर्ड ढूंढना है तो ABC ही ढूंढोगे। ए से वर्ड शुरू करोगे तो सिंगल ए, डबल ए, ट्रिपल ए, 4 टाइम्स ए, ऐसे कोई वर्ड जो है वो चलते जाएंगे। ए के साथ ए का कॉम्बिनेशन, बी का कॉम्बिनेशन, सी का कॉम्बिनेशन बाद में आएगा। सो क्रॉलिंग में क्या होता है कि उसने ये चेक करना है कि आपने जो चीज डाली है, क्योंकि इंडेक्सिंग हुई है सर्च इंजन के अंदर। आप जैसे ट्यूटोरियल ढूंढते हो, C++ का ट्यूटोरियल ढूंढना है तो वो सबसे पहले इंडेक्सिंग में चेक करेगा कि सी वर्ड यूजर ने दिया है, तो सी वर्ड क्रॉलिंग करके इंडेक्सिंग पे पहुंचेगा कि सी है कहाँ। सी में से फिर ये चेक किया जाएगा कि C++ जो है वो कोई इंग्लिश का वर्ड नहीं है, दैट इज द रिलेटेड वर्ड विद द प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस, और वो C++ का फ्रेज इकट्ठा यूज करेगा और फिर उससे रिलेटेड जो ट्यूटोरियल्स उसे मिलेंगे इंडेक्सिंग पेज में हुए जिसमें हमने टाइप ऑफ कंटेंट, कीवर्ड जो आप लगाते हो, कोई भी इंडेक्सिंग बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है क्योंकि वो आप क्वेरी जो कर रहे हो वो इंडेक्सिंग के ऊपर बेस्ड है, उसके बाद क्रॉलिंग जो है वो एंट्री करती है।
अब रैंकिंग की बात आती है, सबसे फर्स्ट स्टेप होता है एनालाइज यूजर क्यूरी। सबसे पहले जब आप जैसे ही क्यूरी देते हो वो एनालाइज करता है कि यूजर ने क्यूरी किस तरह से दी है, उसको ब्रेक करेगा विद द मीनिंगफुल कीवर्ड्स। जैसे अभी हमने बात की सी प्लस प्लस इज द लैंग्वेज नेम, सो सी प्लस प्लस उसको एक कीवर्ड की तरह भी मिलेगा और वो मीनिंग उसका इंग्लिश रिलेटेड लैंग्वेज से नहीं निकालेगा। एंड व्हेन यू विल टाइप हाउ टू मेक अ chocolate cupcake like a simple part कि how to make a chocolate cupcake, the search engine know that you are looking for the result related with the chocolate cupcake, chocolate और cupcakes। तीन मीनिंग इसके निकलते हैं, चॉकलेट से रिलेटेड, कप से रिलेटेड और कपकेक से रिलेटेड। उससे जो इन्फॉर्मेशन मिलेगी वो उसको एनालाइज करेगा। सेकेंड स्टेप में मैचिंग करेगा कि यूजर ने मुझे दिया था चॉकलेट वर्ड भी हो सकता है, कपकेक वर्ड भी हो सकता है, दोनों इकट्ठे भी हो सकते हैं, दोनों अलग भी हो सकते हैं, क्योंकि चॉकलेट मूव्स भी हो सकता है, चॉकलेट बेरीज भी हो सकती है, चॉकलेट टफल्स भी हो सकती है, चॉकलेट फज भी हो सकता है, चॉकलेट से रिलेटेड जितनी भी चीज़ें हो सकती हैं। कपकेक्स मांगे, कपकेक्स भी हो सकते हैं, कपकेक्स चॉकलेट वाले भी हो सकते हैं, कपकेक कपकेक वनीला भी हो सकते हैं, कपकेक आपके मेलन वाले भी हो सकते हैं, कपकेक ब्लूबेरीज भी हो सकते हैं, कपकेक रेड वेलवेट भी हो सकते हैं, वॉट एवर इट इज। तो वो सर्च करेगा, मैच करेगा। अगर एक वर्ड भी मैच हो गया है, वॉलपेपर से मैच हो गया है, इमेज से मैच हो गया, टेक्स्ट नहीं मैच हो रहा, तो जो मैच हो गया उसने आपको दे देना। अगर आपने इमेज मांगी इमेज, वीडियो मांगी वीडियो, आपको वो जो भी उसे मिलेगा। मिक्सिंग रिसर्च भी दे सकता है और ऐसे भी दे सकता है। थर्ड है प्रेजेंट करेगा रिजल्ट यूजर को इन द फॉर्म ऑफ डिफरेंट पर्टिकुलर पार्ट। रिजल्ट जो आएंगे, हाँ वीडियोस भी आ सकती है, ऑडियोज भी आ सकती है, सिंपली टेक्स्ट फॉर्मेट में कोई वेबसाइट भी आपको रेफर की जा सकती है। सो परफॉर्मेंस ऑफ द सर्च इंजन डिपेंडेंट ऑन द टू रिक्वायरमेंट्स, दैट इज इफेक्टिवनेस एंड द एफिशिएंसी। इफेक्टिवनेस आपकी डिपेंड करती है क्वालिटी ऑफ द रिजल्ट जो आपको मिली है। आपने पूछा कैसे है, क्योंकि अगर आपने ठीक पूछी है तो उसने उतना रिजल्ट देना था, बट उसके अगर सर्च इंजन में वही क्यूरी मल्टीपल नाम से पड़ी हुई है तो उसने आपको रिजल्ट वैसे प्रोवाइड करवाया। एंड एफिशिएंसी डिपेंडेंस होती है, रिस्पॉन्स टाइम कितना लग रहा है और आपको वापस रिजल्ट क्या मिल रहा है। अगर उसको सिंगल ही मिल जाता कि आपने क्यूरियट डाली हाउ टू मेक अ चॉकलेट कपकेक, ये क्वेश्चन सीधा ही मैच हो जाता तो सीधी आउटपुट आती। अगर डिफरेंट डिफरेंट मैचिंग पैटर्न से हुआ है तो फिर डिफरेंट आएगी। कंपोनेंट ऑफ सर्च इंजन होते हैं, थ्री कंपोनेंट्स है, दैट आर द वेब क्रॉलर, डेटाबेस एंड द सर्च इंटरफेस। वेब क्रॉलर की वर्किंग डेफिनेटली क्रॉलिंग से ही जुड़ी हुई है कि जब आप सर्च इंजन पे कोई मल्टीपल वेब क्रॉलर्स वर्क करते हैं थ्रू द वर्ल्ड वाइड वेब, बिकॉज यू ऑल आर entered into the global village part ever into the universe, so you all are entered into the universal part of the world wide web। so world wide web जहाँ पे भी यूज हो रही है वहाँ पे आपको एक इन्फॉर्मेशन जब मिलती है तो वहाँ पे एक वेब क्रॉलर यूज होता है, जो कि उसको हम लैंग्वेज नेटवर्किंग में बैट भी कह देते हैं, स्पाइडर भी कह देते हैं। स्पाइडर जैसे होता है, स्पाइडर का काम है एक इंसेक्ट का कि उसने जाल बुनना है, उस जाल में जैसे ग्लोबल विलेज है वो भी एक जाल है, और वर्ल्ड वाइड वेब पे जहाँ पे भी उसको कोई डाटा मिल रहा है वो आपको रिटर्न बैक देगा। डेटाबेस में से जब वेब क्रॉलर एंट्री करेगा तो इंटरनेट पे जो स्टोर हुआ वो डाटा फिर वो आपको उस हिसाब से देता है, और सर्च इंटरफेस जो आप लेते हो उसके हिसाब से देता है। अब बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक्स होते हैं जो इंडेक्सिंग है, हमने बात की थी पहले भी क्यूरिंग की। तो इंडेक्सिंग में आपने सारा जब इंडेक्स करके रखा होगा तो थ्री एक्टिविटीज परफॉर्म होगी: टेक्स्ट एक्विजिशन, टेक्स्ट ट्रांसफॉर्मेशन, इंडेक्स एंड द क्रिएशन। टेक्स्ट एक्विजिशन में जैसे मैंने आपको पहले भी बताया, डिक्शनरी में जैसे आप एबीसी वर्ड से एंटर करते हो, same as with the text acquisition basically identify करता है store document into the databases with the indexing, convert करेगा various of documents with the data format। अगर आपने इमेज मांगी है तो इमेज में दे देगा, वीडियो मांगी है वीडियो में दे देगा, बाइनरी डाटा मांगा है बाइनरी में दे देगा। बट when it is entered into the text transformation, तो text transformation में parser हम यूज करते हैं वर्ड्स को टेक्स्ट को यूज करने के लिए। टोकन साइजर देने के लिए कोट्स यूज करोगे तो उसने और तरह से सर्च करनी है, एंड वर्ड यूज करोगे और तरह से यूज करनी है, क्योंकि हमने ऑपरेटर्स पढ़ने हैं अभी आगे जाके, ये इसके ऑपरेटर्स में भी यूज होता है। तो आपका स्टॉपिंग पावर होता है, रिमूव स्टॉप वर्ड्स लाइक एंड और द, इसको रिमूव कर सकते हो। स्टेमिंग होता है ग्रुप टुगेदर, दो दो चीज़ों को इकट्ठे सर्च करना। लिंक एनालिसिस में होता है कि लिंक्स बनाने, एक पेज खुल गया उसके आगे दूसरा पेज खुल रहा है, तीसरा पेज खुल रहा है, आप इंडेक्सिंग वो जो खुद करते हो वो नहीं होती, जो आ रही होती है टेक्स्ट ट्रांसफॉर्मेशन की वजह से उससे होती है। क्लासिफायर में आपका रिलेटेड डेटा ऑफ डॉक्यूमेंट भी होता है, और इंडेक्स क्रिएशन में डॉक्यूमेंट स्टार्ट पूरा निकल के आता है कि कब इस पे लास्ट इंफॉर्मेशन एंटर हुई थी
और कितना टर्म्स इस पे आइडेंटिफाई हो रही है। इन्वर्जन में जब आपका डेटा इन्वर्ट होगा इन द क्यूरी प्रोसेस तो क्यूरी चलनी शुरू होगी विद द रैंक वाइज आपने जिस तरह से चीज मांगी होगी विद द इंटरेक्शन ऑफ द क्यूरी। सो यूजेज ऑफ द सर्च इंजन की अगर बात करें तो इन्फॉर्मेशन बहुत आती है इसमें। अगर आप कोई भी दे देते हो, जैसे हमने यहाँ पे एग्जांपल लिए, रोहित वांट्स टू बाय अ मोबाइल फोन बट ही डजंट नो व्हिच वन इज द बेस्ट मोबाइल फोन। So on that time he will search that particular phrase best mobile phone in the 2021 or 22 or 23 whatever। 21 के देखना चाहता है 21 लिखेगा, करंट सिनेरियो के देखने 23 लिखेगा एंड द सर्च इंजन गेट द लिस्ट ऑफ बेस्ट मोबाइल फीचर व्यूज प्राइस उसके सामने सारे आ जाएंगे। बट व्हेन यू विल एंटर टू द images and videos and you will enter that particular ways तो आप लिखोगे different categories like plants, animals, flowers, whatever you will feel on that time आप उसकी images मांग सकते हो। सर्चिंग लोकेशन तो आप डेफिनेटली आप वहाँ पे एंटर कर रहे होगे सर्च इंजन से कि सीमा इज ऑन अ गोवा ट्रिप बट शी डजंट नो अबाउट द लोकेशन ऑफ पाल्मो Palolem Beach. Palolem Beach is the very popular beach under the Goa facility. So she searches about the Palolem Beach on the search engine and the search engine gives the best route to reach on that particular beach. तो वो आपको गूगल मैप के थ्रू भी एंट्री दे सकता है, बिंग के थ्रू भी, याहू के थ्रू भी दे सकता है। सर्चिंग पीपल भी अगर आपने सर्च करने हैं तो आप इंटरनेट पे जाके जिसका नाम पता है, अगर नेमिंग कन्वेंशन है, पेपर है उनके, आपके सामने वो नाम आ जाएंगे। शॉपिंग सर्च इंजन हैं तो आप शॉपिंग सर्च इंजन भी दे सकते हो, जो भी शॉपिंग करनी है आप उससे रिलेटेड भी एंट्री कर सकते हो। एंटरटेनमेंट से रिलेटेड है कोई भी पार्ट, कोई जैसे रोहन वॉन्ट्स टू मूवी नेम राम, कोई भी मूवी है, एंटरटेनमेंट है, कोई सीरियल है आपका, कोई भी सीरीज है, वेब सीरीज है, नेटफ्लिक्स सीरीज है, वॉट एवर इट इज, तो उसमें आ जाएगा। एजुकेशन से रिलेटेड कोई भी चीज़ है, आपने कोई भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का कोई ट्यूटोरियल ढूंढना है, कोई भी कुकिंग से रिलेटेड ढूंढना है, होम डेकोरेशन से रिलेटेड ढूंढना है, तो जिस जिसने के ट्यूटोरियल उसमें पड़े होंगे आपको मेंशन करता जाएगा। सो हाउ डू वी यूज अ सर्च इंजन, अब उसकी बात करते हैं कि कब से यूज हो रहा है सर्च इंजन। डेफिनेटली विद द यूजेज ऑफ द बिलियंस ऑफ रिसर्च पीपल, और बहुत सारे लोग हैं जो उसके ऊपर अपना डाटा फिलअप करते हैं। मोस्ट ऑफ द रिसर्चर्स रिलेटेड इन द इंडिया इज ओनली द टू नेटवर्किंग पावर रिलेटेड विद माय नेम आल्सो and I am the bigger advantage power of the networking within the India and in the Iris technology referred to the Oxford University with the search engine capabilities. So the things related with the popular search engine is the 5.6 billion searches made per day होती हैं जो गूगल पे होती हैं, क्योंकि लोगों को लगता है कि बहुत आसान है अब आपका इंजन, जिसमें आप www.google.com करके भी लिख सकते हो, और जब आप वेब ब्राउज़र पे एंटर कर जाओगे तो उसके ऊपर सिर्फ आपको प्रेस एंटर करना है। मैं आपको एक फिगर दिखाती हूँ, दिस वाज द फिगराइजेशन ऑफ द गूगल सर्च इंजन। और आप जिस एड्रेस बार में जो भी क्यूरी लिखना चाहते हो, फॉर एग्जांपल कि आप जिस ये दिस इज कॉल्ड एड्रेस बार, इसको कहते हैं एड्रेस बार। एड्रेस बार में जो आप क्यूरी लिखते हो फिर वेब क्रॉलिंग होती है, फिर आपकी इंडेक्सिंग में से वो चेक करता है, फिर फिल्टर करके आपको डेटा जो है क्यूरी फॉर्म में प्रोसेस करता है। सो ये प्रोसेस आपका 1 सेकेंड का होगा ज़्यादा से ज़्यादा, और थ्रूपुट सारी आप देख ली है कि टाइम क्यों कम लग रहा है, क्योंकि इंडेक्सिंग ऑलरेडी हमारे जितने भी टॉपिक्स उसके ऊपर है उसके ऊपर एंट्री हुई है। सो दीज आर द ऑपरेटर्स रिलेटेड विद द सर्चिंग। अगर आप सिंपल लिखते हो तो आपने देखा कि वो कितनी सारी कैटेगरीज निकाल देगा, बट आप अगर ऑपरेटर्स यूज करोगे तो आपका डेटा फिल्टर भी होगा। नॉर्मली आप सर्च करोगे तो 100 ऑफ पेजेस, 1000 ऑफ पेजेस जितने होंगे निकल आएंगे, और आपको खुद देखना पड़ेगा कि विच वन इज द बेटर थिंग। सो बुलियन ऑपरेटर्स की हेल्प से आप इसमें एंटर कर सकते हो। बुलियन ऑपरेटर्स हमारे पास होते हैं जो अनाउंस करते हैं बुलियन ऑपरेटर्स को हम, जो 19th सेंचुरी में ब्रिटिश आपके मैथमेटिशियंस थे वो इसको बहुत ज़्यादा यूज़ करते थे, जॉर्ज बूल। सो द इन्वेंटर ऑफ बुलियन अलजेब्रा ने जो वहाँ पे यूज़ किया था वही हमारा आज तक यूज़ हो रहा है, और 3 बुलियन ऑपरेटर्स है, एंड और नॉट। सो टू हेल्प द प्रोड्यूस ऑल दीज पर्टिकुलर थिंग्स आपको जो ऑपरेटर यूज़ करना है तो यही एंड और नोट तीनों को कैपिटल लेटर्स में लिखना होगा। यूज़ कैसे करना है अब हम देख लेते हैं। सबसे पहले ऑपरेटर है एंड। The if you want your search to search particular container more than one keyword you can add and। जब आपको दो से ज़्यादा में कोई चीज़ ढूंढनी है तो ऐड यूज़ करना है। और नोट कर लीजिएगा कि स्ट्रिक्टली नेसेसरी है कि इफ़ यू सर्च फॉर द computer technology is the single word, but by default the search engine will return the same result as search for the computer and technology वो देगा। अब अगर आपको पहले ही पता है कि मुझे दोनों का चाहिए रिजल्ट, कंप्यूटर एंड टेक्नोलॉजी,
तो आपको वो रिजल्टेंट में पेज ही वही देगा जो इकट्ठे बने हुए होंगे। कंप्यूटर टेक्नोलॉजी अगर अकेला लिखोगे तो वो डेफिनेटली है कि कंप्यूटर के अलग पेज, टेक्नोलॉजी के अलग पेज, काफ़ी सारे पेजेस खोलेगा। एंड अगर इंग्लिश का लिखोगे तो फिर वो और मीनिंग है, बट अगर एज अ ऑपरेटर आप उसको कैपिटल वर्ड में यूज़ करोगे तो उसके लिए वो एज अ बुलियन ऑपरेटर है, और ऑपरेटर जब वर्क करता है एंड, तो वो दोनों कंडीशंस ट्रू होंगी तब वर्क करता है। कंप्यूटर एंड टेक्नोलॉजी अगर उसे इंडेक्स में कहीं मैच करता है तो वही पेजेस आएंगे। फॉर एग्जांपल अगर कंप्यूटर टेक्नोलॉजी में उसे 1000 पेजेस मिले और फिल्टर करने के बाद हमने उसे बोला कंप्यूटर एंड टेक्नोलॉजी, तो ऑटोमेटिकली उसके पैटर्न मैचिंग में उसको 10 पेज भी मिले हो सकते हैं और वो आपको उस हिसाब से एंटर करवाएगा। And the or operator with the, if you are interested in either backend or eggs से रिलेटेड कुछ भी रेसिपी कोई ढूंढ रहा है, या फिर सिंपली लिख दिया उसने, या फिर उसने लिखा है कि सर्च करनी है कंप्यूटर और टेक्नोलॉजी, बैकएंड और एग्स भी हो सकता है, और आप कंप्यूटर और टेक्नोलॉजी दोनों फ्रेजेस को करके देख लेना कि आपके पास क्या आएगा। और है तो और का मतलब होता है वन फिगर इज द ट्रू एंड वन इज द फॉल्स इफ प्रूव दैट, तो आप कुछ भी मेरे रिटर्न कर सकते हो अकॉर्डिंग टू योर रिक्वायरमेंट। इफ यू फील दैट कि मुझे पेजेस कंप्यूटर टेक्नोलॉजी के अलग भी चाहिए और इकट्ठा चाहिए, तो और में आपको फिल्टर खुद करना पड़ सकता है थोड़ा, बट एंड आपको पूरा फिल्टर करके देगा, क्योंकि और की कंडीशन यही होती है कि उस कंडीशन में या तो बैकएंड है, बैकएंड वर्ड रिटर्न कर दे, या एग्स जितने भी है वो वर्ड रिटर्न कर दे। ठीक है, बैकएंड इज अ कंपनी नेम एंड कंप्यूटर वर्ड रिटर्न कर दे, टेक्नोलॉजी वर्ड रिटर्न कर दे, उसमें से वो आपको इकट्ठे वाले नहीं करेगा, सिंगल सिंगल वाले रिटर्न कर देगा, जहाँ पे भी उसको पैटर्न मैचिंग में मिलते जाएंगे। दोनों भी कर सकते हैं, सिंगल भी कर सकते हैं। नोट बहुत ही अप्रोप्रिएट पार्ट है। हमने जब भी किसी चीज़ को लाइन से बाहर निकालना है कि मुझे ये चीज़ नहीं चाहिए, तो आप अप्रोप्रिएट में नॉट को यूज करोगे। जैसे हमने यहाँ पे एग्जांपल लिया है, कार देखनी है बट नॉट मारुति, जब आप ये लिख दोगे तो डेफिनेटली वो नॉट की वर्ड में जब मारुति वाला जो कैटेगरी का वर्ड है उसकी कोई कार नहीं दिखाएगा, बाकी सारी दिखा देगा, सेम एज विद द एनी पार्ट। अब बात करते हैं कोटेशन मार्क्स को डालना क्यों जरूरी हो जाता है। कोटेशन मार्क्स जब आप डाल देते हो ना तो वो स्पेसिफिक फ्रेज बन जाता है। जैसे हमने यहाँ पे यूज किया है कंप्यूटर एंड टेक्नोलॉजी एप्लीकेशंस, तो ये कोटेशन मार्क के अंडर आ गया, तो ये एक सेंटेंस बन गया, फ्रेज बन गया। पैरेंथेसिस यूज करते हो अगर आप कंप्यूटर एंड टेक्नोलॉजी और पैरेंथेसिस यूज किया, अब पैरेंथेसिस के हिसाब से सबसे पहले उसने डेफिनेटली है कि अकॉर्डिंग टू द रूल डेफिनेटली उसने पैरेंथेसिस को आप पहले रिकमेंडेशन देनी है, फिर बाद में कंप्यूटर एंड टेक्नोलॉजी को देनी है। सो अकॉर्डिंग टू द रिक्वायरमेंट, अगर रिक्वायरमेंट ऐसी है तो आप पैरेंथेसिस भी यूज कर सकते हो, नहीं है तो आप सिंपली फ्रेसेस कोड्स वाले यूज करके भी कर सकते हो। सो दीज आर द गूगल सर्च ऑपरेटर्स, ये जो हम सर्च ऑपरेटर्स बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं। इसके अलावा बुलियन के अलावा जैसे हमने यहाँ पे देख रहे हैं डॉलर साइन बहुत यूज़ होता है, जैसे डॉलर सर्च फॉर प्राइस के लिए यूज़ होता है, प्राइस का मैटर है। जो आपका ये हाइफन है ये एक्सक्लूड वर्ड्स फॉर्म सर्च करता है, जो डॉटेड वर्ड्स होते हैं एग्जैक्ट फ्रेज में एंटर करते हैं, जैसा लिखा हुआ है साइबरनास की, यहाँ पे बात की गई है मल्टीपल फ्रेजेस की। तो कंबाइन सर्च वर्क करना है तो बुलियन ऑपरेटर का और ऑपरेटर का ये साइन है बेसिकली, ये नथिंग एल्स, ये साइन है बुलियन ऑपरेटर का, जो आप एक्सक्लामेटरी भी डाल सकते हो, ऐसे लाइन डाल के नीचे आप छोटा सा एक डॉट दे दोगे तो वो एक आपका ऑपरेटर का सेंस चेंज होगा, चलेगा वैसे ही। और ये है साइट से रिलेटेड, अगर स्पेसिफिक डोमेन या वेबसाइट ढूंढनी है तो आप साइट वर्ड से भी चल सकते हो। इन अगर आप एल यूज करते हो या इन यूज करते हो, ज़्यादातर ये लेंथ होता है, इन नहीं होता, LN होता है। लेंथ किसी चीज़ की देखनी है तो यूनिट्स की भी हो सकती है। फाइल टाइप देखनी है, फाइल टाइप भी हो सकती है कि आप PPT देखना चाहते हो, PDF देखना चाहते हो, एक्रोबैट रीडर देखना चाहते हो, कोई भी चीज़ देखना चाहते हो। डिफाइन कॉलन भी आपका यूज होता है बहुत ज़्यादा जब आप कोई पर्टिकुलर डेफिनेशन ढूंढ रहे हो। टेक्स्ट वर्ड भी यूज होगा जब आप वेब पेज जिसमें कोई बॉडी टेक्स्ट जैसे आप यूज करते हो, और बॉडी के अंदर जो पार्ट उसमें एक आप कोलैबोरेशन में लिंक दे देते हो, ये उसके लिए यूज होता है। इन URL आप यूज करते हो, URL इज द बेसिकली यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर।
अगर आपको पूरा नहीं पता तो इन यूआरएल में आप सर्च करोगे वेब पेजेस को, तो उस तरह के वेब पेजेस यूज नॉर्मली ये टेक्निकल लोग यूज करते हैं, और ज़्यादातर लोग गूगल में भी ये एड ऑपरेटर अगर आप यूज करना शुरू कर दोगे तो डेफिनेटली एनहांसमेंट बहुत बेटर मिलेगी. So this is my advice to all of you. Kindly use the operator filtering thing under the search engine. So hope so that particular tutorial is very helpful to all of you. And if you have any type of question or query, kindly comment into the comment box or in the channel. So thank you so much. God bless you.